and very thoroughly that has been. My lord, I would beg to disagree. And then, of course, there is the appeal in the contempt of court orders. But now I'll come to the most difficult part, and with the utmost respect to the benches, which is incidentally for the third time you have said, I now come to the most difficult part. So, You're moving stepwise. Every section of this law is so convoluted and difficult that I have stated the reason why the law is so every difficult. section is the most difficult part of your argument. The most difficult part is that one never wants to say that, Your Lordship, there is a judgment which should be revisited. There are two judgments, and they have been rightly cited by the petitioner's counsel, my lord. One is the Bas Kakar case, where they have relied on certain principles of law and constitutional principles on the basis of which they seek the striking down of law. I will not go into the detail of this judgment, my lord. I'll just point out the pages. Page 1993 to 1995 deals with Section 8 of the Contempt of Court Act 2012. ये कौन सा पास मोहम्मद वाला है? जी, PLD 2012 Supreme Court 923. 923. Now, my lord, इसमें कौन बताइए? sir, 993 to 995. 993 to 995 इसमें क्या खराबी Sir, है? Section 8 in the Contempt of Court Act. ये कितने जजेस का? Sir, मेरे ख्याल में 5 दिखाओ बेटा, 5 मेंबर. 1 2 3 4 5 थे सर. अच्छा, इसमें ये पेजेस गलत हैं, क्यों? नहीं, ये पेजेस गलत नहीं है, distinguishable है. The reason is that if your lordships looked at Section 8, which was struck down, of the Contempt of Court Act 2012, which I have attached in my notebook, वो ये करता था कि एक जज ने कॉग्निसेंस ले लिया है एक कंटेम्प्ट का, और वो ये कहता था कि ये ट्रांसफर कर दो. चीफ जस्टिस ने कॉग्निसेंस ले लिया और कहता था ट्रांसफर कर दो. So it was really interfering in judicial orders. Now, when it came to the appeal, what the Supreme Court has done is that it has said that Section 19 में जो appeal है वो ठीक है. Those are pages 1000. Those are pages. वो दिखाना मुझे judgment दिखाना. It's para 82. पैरा 82 ठीक है, पैरा 82 ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक मिनट, पेज बता रहा हूँ. पेज नाम 1004. ठीक है, पैरा 82 हो गया, हम ढूंढ लेंगे. Para 82, and after striking down the 2012 Act, that law is revived. Now, the problem with the appellate appeals provision in the 2012 law was कि सर उसमें लिखा हुआ था एक अपील फाइल होगी, वो किसी शो कॉज के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ, और फिर फुल कोर्ट बैठे, सारे जजेस बैठेंगे. मतलब सारा पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ले लिया गया था, और उसमें लिखा था फौरन सस्पेंड हो जाएगी. सो दैट वाज सच एन इंटरफेरेंस दैट whatever has been said. No, but can't you reconcile it by simply saying that in that case the parliament did something so extreme, yes, to protect people of a particular who may have committed contempt, therefore the court found it necessary to intervene. Here maybe that they have not done something so extreme. And the law was, I think, unconstitutional. So वो distinguishable है, provisions देख लीजिएगा. Now I come to the judgment which, with due respect, I think if the law is to be upheld, this law has to be revisited to a certain extent. If your lordship may kindly see, sir, this is called the Ghulam Mohyuddin case. Citation देते हैं. Sir, ये unreported है. It is 11th August 2023. 11th August. ये कितने member bench है? Three member bench. This is constitutional petition number 21, 22, 23 of 20. मैंने लगाया है सर अपनी पेपर बुक. ये कहीं रिव्यू वगैरह में तो नहीं पड़ा हुआ है? Sir, this is in review also. रिव्यू में फैसला हुआ है? नहीं. तो फिर इसको पता नहीं मुनासिब है या नहीं बात करना है इसके मुताबिक. Sir, there are passages in this judgment. अगर इसमें देखिए, अगर हम फिर उसको रिव्यू को फिर रिडंडेंट बना देंगे. Sir, वो बात
I think even if those passages are revisited, the judgment on its own would stand. नहीं देखिए, But there are passages. नहीं फैसल सिद्दीकी साहब, दो बातें हैं ना। पहली बुनियादी बात है, अगर एक वो रेगुलर उसमें आया है हमारे पास रिव्यू में, जो राइट एक्सरसाइज है, उसको हमें बात नहीं करना चाहिए। अब जहां तक असूल की बात है, अगर हमने इस केस में जिस तरीके से भी फैसला किया, असूली फैसला किया, अब उसका शायद असर उस पर पड़े या ना पड़े, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि Implied overrule. हाँ? Implied overrule. नहीं वो हम देखें, उधर जाने नहीं चाहते हैं, तो इस केस का जिक्र ही ना करें, बेहतर My है। last point and then I will conclude, sir. Just, Page just 8. one thing I Ji, need ji. to add. This law, which is under challenge now, was promulgated on the 21st of April 2023. जी जी Or review of judgments law immediately after that, which is 26th of May 2023. And if you go through, compare both laws, they are a repeat of each other almost, except that in review they said कि जी review में वही grounds होंगी जो appeal में होंगी. And it was pointed out to the. सर वो पोएम थी ना, try again वो उसका क्या बना? Okay, you answered that. उसका केस You क्या answered बना? my question. Try again. There was so much नहीं desperation. वो सेटिसाइड हो गया, जी उसमें भी रिव्यू है या नहीं है? नहीं ये वाला रिव्यू वाला तो नहीं, ये जो दूसरा नहीं ये उसी की बात कर रहे हैं। उसमें भी रिव्यू हुआ है या जी नहीं? जी उसी नहीं सर उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात की। अच्छा, इसी में? जी जी तो अच्छा ओके, इसमें जो एक और loss केस down है। हुआ, जी, जी। ये subsequently आया. सर लास्ट पॉइंट which is page 8 of my note. Now, Whether last point is difficult or easy? नहीं सर ये सबसे आसान है। This might actually unite the court. Sir, if your lordship comes to the conclusion that any part of this law, let's say section 3, Don't is throw the uncon- baby out with the bath water. सर ये सारी जो प्रोविजंस अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ 3 और 4 का ताल्लुक है 2 से और किसी का ताल्लुक नहीं है। 3 or 4 refers to the committee in section 2. Even section 2, if it's upheld, and section 3 and 4 are not upheld, it will not make a matter. So if your lordship comes to the conclusion, I hope your lordships and ladyships don't, but then the doctrine of severability can be applied in this case. It couldn't have been applied in the 2012 case. I'm very grateful to your lordship for a very patient hearing. To all your lordships and to your ladyships. Thank you. Thank you. And at least speaking for myself, I compliment you for Thank you, sir. answering or trying to answer all the questions to the best of your ability. Thank and you, you were well prepared. Thank you, sir. I'll add my voice to that. You must thank us also. We made you exercise, lose calories. Thank you, sir. Thank you. Very kind, sir. अब कितने लोग रह गए? बता दें कौन कौन से हैं? कोई जो मुख्तसर वाले हैं, किसी ने आप कोई नई बात, क्योंकि काफी तफसीली आपको फायदा मिल गया जाहिद इब्राहिम साहब और कौन थे फैसल सिद्दीकी साहब का। नोट इसमें सबमिशन यही थी कि हमने प्रेस रिलीजेस भी इशू किए थे, रेजोल्यूशंस भी थी कि फुल कोर्ट की कंस्टिट्यूशन हो, वो तो हो गया, वो तो हो गया माय लॉर्ड, बगैर आपकी प्रेस रिलीज पड़े हुए। माय लॉर्ड वो हमने सीएम लगाई हुई नहीं है। तो आपने जो बातें अगर लिख दी हैं तहरीरी तौर पे तो वो हम पढ़ लेंगे। अगर आपको कुछ मजीद कोई खास पॉइंट रह गया है जो इनसे छूट गया है तो बता दीजिए, नहीं तो काफी अटॉर्नी जनरल मेरे ख्याल में मेन आदमी शख्स होंगे। माय लॉर्ड इसमें सबमिशन यही है कि जो एक्ट पास नहीं, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं एक्ट को? मस्ट माय लॉर्ड, अच्छा, वो एक्ट पास हुआ है। तो ये बताइए ये क्यों डिवीजन क्यों आया है वकीलों में? पाकिस्तान बार काउंसिल एक मौकिफ ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दूसरा मौकिफ ले रहा है, ये काफी एक कानूनी बहस है लेकिन ना? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार ने जो रेजोल्यूशन और अपनी प्रेस रिलीजेस दी हुई हैं वो इसी पर्पज के लिए दी हुई हैं। वो अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ लूं माय लॉर्ड। आपने फाइल की हुई है? माय लॉर्ड नहीं, हम देख लेंगे, वो इसी अगर फाइल है तो पर्पज ठीक है। अब ये आपका सीएमए नंबर से बता दें। इसका आसान जवाब ये है, रीजनेबल माइंड्स कैन डिफर। यस माय लॉर्ड, और इसमें सबमिशन यही है रीजनेबल प्रीवियसली माइंड, वो आप अपना सीएमए तो बताइए नंबर। पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या फाइल माय किया? लॉर्ड 4207 8087 एक सीएमए नंबर, और 8087 सॉरी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता कहिए, एक शख्स बोले। जी मैम 4207 पहले है, ये अलाउ हुई है।
और ये तो हो गई फुल कोर्ट। हाँ, अच्छा, ओके। 8087 दूसरी कौन सी है? 8087 8087। हम आपको कब खत्म नहीं करना चाहते, मगर अगर वो बातें हो चुकी हैं, वो दोहराने वाली बात नहीं है, तो फिर रहने दें। अलर्ट इसमें सबमिशन सिर्फ इतनी थी कि जो एक्ट पास हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इनलार्ज किया गया है, उसमें कर्टेल नहीं किया गया, और उसमें अगर एक जज साहब के पास ये इख्तियार था तो वो अब 3 जजेस साहबान के पास इख्तियार आ गया है। और अगर वो विद द कॉन्सेप्ट जिस तरह कुरान में भी है कि मशवरे के साथ अगर किया जाए, इसलिए कि पहले मशवरे नहीं होते थे, तो जिस वजह से हमने और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में हमने सफर किया है, और ऐसे ऐसे फैसले भी हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने, जिस तरह जुल्फिकार भुट्टो केस है उसमें नसीम हसन शाह साहब ने खुद एडमिट किया था कि जो ऑर्डर हमने किया था वो हमारी गलती थी और कोई प्रेशर था। तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि ऐसे ऑर्डर किए जाएं कि जिस तरह आर्मी चीफ को ये भी इख्तियार दिया जाता है कि वो प्रेसिडेंट भी बने और आर्मी चीफ भी रहे, और 4 आर्मी चीफ जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे इन यूनिफॉर्म, और इस बात का तल्लुक कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि एक आर्मी चीफ होगा और वो सिटिंग होगा और वो इलेक्शन लड़ेगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। इसलिए ये हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इसका कोई असर नहीं, बल्कि मतलब डेफिनेटली इसलिए कि प्रीवियसली जुडिशरी ने इंडिपेंडेंस व्यू नहीं दिया, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इख्तियार है ही नहीं है, तो वो भी दिया गया। और उन्होंने आप क्या कह रहे हैं कि अपील का हक देकर के इंडिपेंडेंस और जुडिशरी बढ़ती है, कम नहीं होती है? यह कह रहे हैं? अच्छा, इसलिए कि अगर वो राइट दिया गया है, अगर एक जज साहब के फैसले से कोई सफर करता है तो वो 3, 5 और 9 और इस तरह सुने, आजाद अदलिया। तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि जिस तरह प्रीवियसली हो गया है कि जफर अली शाह केस है उसमें फुल बेंच ने ये ऑर्डर फरमाया हुआ है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री भी हो गए, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकते हो, और आपने राइटली एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। तो इस तरह के अगर फैसले होंगे तो हम आगे फ्यूचर में नहीं चल सकेंगे। मेरी सबमिशन सिर्फ इतनी है कि फैसले ऐसे किए जाएं वो जो कौम को और दुनिया को नजर आए कि वो जुडिशरी ने फैसले। तो आप समझते हैं कि इस तरह हो कि आजाद अदलियत हो लेकिन कानून और आइन के पाबंद। आइन की पाबंद। ठीक, थैंक यू। ये मेरी सबमिशन है। ठीक, शुक्रिया। आपको कितने लोग रह गए? Arguments were crazy. Is it short or is it long? I'll try to be short. I've already had audience on the first hearing. I have filed written submissions and additional submissions, but I'll try to conclude my submissions in 1 hour, not more. Who would leave you to conclude your arguments in 1 hour? Not so. You will be bombarded with questions You now. can't get away that easy. No. 1 hour for me. कल आप हैं इधर? I am. कल कोई मेरा केस तो नहीं है, कोई बड़े वाले कोई बंचेस एक रखा था ना बहुत बड़ा? हाँ, तो कल फिर खैर में आप भी जरा फ्रेश हो जाए, हम लोग भी जरा फ्रेश माइंड्स के साथ बैठेंगे। अगर आपको अगर यू आर हियर यू नॉट I've noticed that in the first half an hour one can get away with questions and make substantial progress. Are you going to regulate us? Today I noticed that. Are you going to regulate us? Are you going to tell us how we are going to conduct ourselves? I'm just hoping this is an expectation. It's a hope against hope. It's not going to happen. Regulating the Supreme Court appears to be the unthing these days. Not Flavor of the day. अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत आप मुलाहिजा कर रहे थे नाजरीन। ये समाअत के हवाले से आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फायजा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत की जा रही थी, जिसका आज के लिए ये समाअत जो है मुकम्मल कर ली गई है। अब कल दोबारा से ये समाअत जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जारी थी, जो अब से कुछ लम्हे कबल खत्म हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में कुछ तो नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट में कर दें MQM is represented by Mr. Faisal Siddiqui, who during the course of arguments submitted a booklet and said he had not filed anything else. Full stop. He, semicolon, he concluded his submissions, whereafter
आप उनके नाम लिख दें पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है। और आप अच्छा ठीक है stated that they stated that they filed two applications. The first CMA number 4207/2023, which sought the constitution of the full court has become infructuous since the full court is hearing this case, and their contentions are contained in the other CMA 8087. Full stop. आप इनके submissions adopt करते हैं या नहीं? They further state that the submissions made in support of the act they adopt and don't want to repeat for the sake of क्या होता है? To avoid repetition. ठीक है. Learned Attorney, it is now almost 4 p.m. Learned Attorney General states that he will take about an hour to conclude his submissions. Adjourned to कल तारीख Tuesday, Wednesday, 11th October 2023 at 11:30 p.m. Yeah. Yes. I'm tired. Why not? Just as well. Uzair Saab ji. By the way. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हो रही थी। चीफ जस्टिस काजी